inspiring guidance and compassionate blessing of our beloved Guruji, Venerable Bhikkhu Sangasena, MIMC has for more than 3 decades remained a beacon of compassion, peace, and holistic well-being, not only in Ladakh but across India and beyond. Through the years, MIMC has offered yoga and meditation not merely as practices but as a way of life, a transformative journey of inner awakening and global harmony. We are proud to be pioneers of yoga and meditation in Ladakh, serving seekers of truth and lovers of peace from around the world. In line with this legacy and in celebration of the 10th International Day of Yoga, we are honored to host today's special countdown event theme, Yoga for One Earth, One Health. This message resonates deeply in today's world as we all strive for total health, physical, mental, emotional, and environmental. Our Guruji, the founder of MIMC, was among the first to introduce yoga and meditation to Ladakh more than 3 decades ago. Since then, under his tireless effort and visionary leadership, regular yoga and meditation programs have flourished. In recognition of this, Guruji was honored with the prestigious Prime Minister Yoga Award in 2021. In 2022, MIMC was officially recognized as the only yoga institution in Ladakh by the Ministry of Ayush, Government of India. Soon it is set to be further promoted as a leading yoga institute in the region. Guruji envisioned Ladakh as the new capital of yoga, dhyana meditation, and karuna compassion. We are also happy to announce the YCB certified yoga instructor course to be held from 1st to 31st May. Since its launch in 2022, it has already become a platform for nurturing discipline and knowledgeable yoga practitioners. We are deeply grateful for the presence of so many distinguished guests, respected dignitaries, students, and institutions gathered here today at Buddha Park, fondly known as the City of 1,000 Buddha, a site that embodies our shared aspiration for world peace and inner transformation envisioned by our revered Guruji, Venerable Bhikkhu Sangasena. Without taking much more time, may I now invite our Honorable Chief Guest, Advocate Tashi Gelson, our Guruji, Venerable Bhikkhu Sangasena, Professor Saket Kushwaha, Dr. Padma Gurmit, and all our honored guests to kindly step forward for the ceremonial lighting of the Holy Lamp. A symbol of wisdom, purity, and the light of inner awakening. Vice President Vice President yeah. Acha, women wing mana. Acha, okay. Thank you. It is now my deepest honor to invite our revered Guruji, Venerable Bhikkhu Sangasena, founder president of Mahabodhi International Meditation Center and recipient of the Prime Minister Yoga Award 2021, to deliver the keynote address. Genli, please. Tina ipsi zera sambika na zera mirial. Chin. Buddhang
Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami. May all the divine beings and divine powers from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful place, Buddha Park, for world peace, to practice yoga. Shri Tashi Gyaltsen's Chief Executive Councillors of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Professor Saket Kushwaha, excuse me, the Honorable Vice Chancellor of the University of Ladakh, Dr. Tashi Tinles, the Honorable Directors of the UT Health Department of the UT Administrations, and Dr. Padma Gurmet, the Directors of the Sawarikpa institutions, and all our commanding officers from ITBP and other officers, Madam, and our special guest from the police department. Sir, please forgive me not being able to remember and pronounce your name correctly. Similarly, हमारे Nazir साहब हैं, Nazir साहब, our giant Konchok Pandele, और हमारे लद्दाख के जाने माने artist Punsok साहब will present a beautiful melodious song after this. The formal yoga asana is finished, and the whole program will remain incomplete without his melodious song. And we are also fortunate to have Dr. Jingmet, professors from the Ladakh universities, and all other distinguished on the dais, and guests from various institutions, Ladakh University of Ladakh, Police Department, ITBP, and Sawarikpa, and several others educational institutions. I welcome you all for this historic day, the 76th day, countdown to the International Day of Yoga, 21st June 2025. As you all know, our Honorable Prime Minister Narendra Modi, who himself is Karma Yogi, he had taken up this yoga in the United Nations Assembly 10 years back and appealed to the members to declare an International Day of Yoga. We have so many days dedicated to various important things, but yoga dedicated to perfect health cannot be less than any other day. Therefore, the member of the United Nations Assembly, in one voice, they all supported this, agreed, and since then, our great country, Bharat, have been organizing mass yoga programs in different parts of India under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And this yoga meditation, Karuna, Ahimsa, Vasudeva Kutumbaka, was born in India. India is the birthplace of these invaluable spiritualities. It was born in India, but now is spread all over the world through the initiative
and the effort of honorable Prime Ministers. The greatest wealth of our country, the greatest wealth of our country is not Coca-Cola and Pepsi-Cola. The greatest wealth of our country is the ancient wisdom of yoga, meditation, dhyana, ahimsa, karuna, vasudhaiva kutumbaka. The world today needs it desperately, more than anything else. So the whole world is looking at India to lead the world, peacefully. We do appreciate and recognize the great contributions made by Western countries in the field of science and technology. No doubt they brought great comfort to the physical body, but they miss the inner aspect of our life, the spirituality. That's why the West have progressed unbelievably, with all the technologies, and because they are missing the spiritual values, so the technology has been misused for destructive purpose. Bombs are being dropped like a rain in many parts of the world. Millions of human beings, including innocent mother and child, have been brutally killed, murdered. This happened because we miss this inner aspect, the compassion, the yoga, the meditation. This were needed. They have the fantastic mobile, internets, 3G, 4G, 5G, but they miss the Guruji. All your fantastic 3G, 4G, 5G will prove Bhasmasura dance without guided by Guruji. So this time has come. All your modern development has to be guided by divine, not by wine. Okay? We want divine, not wine. We want 3G, 4G, but also Guruji, isn't it? We want material development, but we also spirituality. So realizing the importance of this, our institutions, Mahabodhi International Meditation Center, in a very humble way, for last 30 years, have been striving to provide regular yoga and meditation spiritual programs. I'm glad to share with you all. Today, our center has become globally recognized spiritual center. Thousands of people from different parts of India and around the world flock to this place during the summer time to participate in our various yoga, meditation, spiritual teachings programs. And we hope with the support and guidance of Ladakh UT administration, with the support and guidance from our Hill Council, our respected Advocate Tashi Gyaltsen sir, and other institutions like Sawarikpa, Ladakh University, and other institutions, various Ladakh Buddhist Association, Muslim Association, etc. We do hope to make Ladakh as truly as spiritual capital. My puchik esperamos tanto que se control chusnachin. Nas mangpek zeramet pachik chus. Ladakh is a land of yogis. Ladakh is a land of peace and harmony. Beautiful part of Himalaya. We want to promote this as spiritual capital, so that people from different parts of our own country, busy life like Bombay and Bangalore and Chennai and Delhi and Calcutta, etc., can come here from time to time and participate in our yoga, meditation, teaching program, get rejuvenated, and then go back and work. Yes, and also beyond our India. For the whole world, we wish to promote Ladakh. Ladakh as a very special spiritual. Hello, Minakle. Anna lecture sir. Azuk shiklinga directly ko azer mana no kali spera mango tangduk zele control chuchashi sungas mi jule mangpek ngatang hangata skundon pakapsana no skiot beshat jospale ne वही हमारा इच्छा है कि लद्दाख एक स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने में
उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। एक आदमी से नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, सब मिल करके एक लद्दाख को एक यूनिक बनाएंगे, बिल्कुल सबके लिए। बाकी जो टेक्नोलॉजी का है, एक टेक्नोलॉजी वगैरह, मनी वगैरह हर जगह, लद्दाख इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, लद्दाख इज फॉर ओमने पानियो। Your money could be devastated again without guided by Om Mani Padme Hum. Money and Om Mani Padme Hum should go together. So, without taking much time, I once again welcome our respected chief guest, Tashi Yatsan Sahib, and all the other distinguished guests, and especially like to extend hearty welcome to our Honorable Vice Chancellor of Ladakh University, to not only to this place, to Ladakh, and wish you a wonderful stay in Ladakh, a successful turnover. We already have signed MOU, sir. We look forward to take up various things together. Oh, the Shalom Mikhwal, no. So, on behalf of everyone, Mahbudi and beyond Mahbudi, welcome you, sir. Ladakh University, the first university in Ladakh, sir, very important. And you are the second or third? Third vice, sir. Wish you all the best, sir. Thank you. Thank you. And we also have signed MOU with ITBP. Mahbudi hope to provide the best possible yoga, meditation, spiritual solace to our Jawan who are serving our nation, protecting the nation in such a challenging areas on the China and Pakistan border, and we will try our best to provide all possible spiritual solace to them. Yoga and meditation can be a big additional support, emotional support to them. And health department के साथ भी हमारा MOU बन रहा है सर, and सब मिल करके उसके साथ साथ जो भी कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ भजन ना हो, कुछ धम्मा संग नहीं हो, तो वो भी मिस हो जाएगा। हमारे साथ पुंसोगला रखी हुई है, सब wonderful. Once again, welcome you, sir, and wish you a wonderful yoga sessions. It's guided by our Ministry of Ayush, and I hope you will have a good yoga exercise and then practice in daily life. And this place is open for you. Welcome. We will have a regular yoga meditation program. We have a yoga instruction course and so many things. We have an international festival of yoga. We will have a Mahakumbh yoga, everything. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you very much, Kinley, for your enlightening words and for always being our guiding light in such initiatives. Please forgive my earlier error. Let me take a moment to properly recognize Ms. Kunzis Dolma, Vice President, Ladakh Buddhist Association. And sorry, I forgot to mention the name of Dr. Jigme Dijin, Dean, Student Welfare, University of Ladakh. Now, may I kindly invite Professor Saket Kushwaha, the Honorable Vice Chancellor of the University of Ladakh, to address this gathering. Sir, we are honored to have you with us. थैंक यू। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मैं भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ मंचासीन सभी विद्वत जनों को साकेत कुशवाहा का विनम्र प्रणाम, जुले अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद विद्यार्थी, सभी पार्टिसिपेंट्स, सहयोग के लिए उपस्थित मीडिया, सुरक्षाकर्मी, उन सभी लोगों को जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जुले बोलता हूं। एक छोटा सा मैसेज है कि आपने अभी गुरुजी को सुना होगा। मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थियों को कुछ चीजें अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। शब्दों में जान होती है, वर्ड्स आर लाइफ।
इन्हीं शब्दों से आप हंसते हैं, रोते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगा भी इसी चीज़ को सिखाता है। योगा को अगर हम एक सरल भाषा में देखें या फिजिक्स की भाषा में देखें तो बाहर और भीतर की फीलिंग को एक साथ वो गुंजित करता है। गुंजित का मतलब हो गया संगीत पैदा करता है, या फिजिक्स में हम बोलते हैं रेजोनेंस पैदा करता है। तो जब हम भीतर की आत्मा को बाहर के वातावरण से मिला के एक स्वर में जब हम उस चीज को देखते हैं तो योगा का निर्माण होता है, योगा का उद्भव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आज के दिन में हम एक साथ मिलकर इस कुटुंब को, ये जो विश्व कुटुंब है, इसको जीवंत करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं और एक दूसरे को के दर्द को समझें। ये दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो मैंने अभी पिछले मीटिंग में हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब जब हमारे विश्वविद्यालय में आए थे तो उन्होंने कुछ दो चार बातें ऐसी बोली थी जिसे दिल को ये लगा कि इस लद्दाख प्रदेश के जो की ऊर्जा जो है शांति का के लिए उसका एक खोज कर रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे ये विश्वास हो गया कि अगर हम सब मिलकर एक प्रयास करें तो जरूर शांति को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को ऊर्जा देता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक स्वर में एक मन के साथ आइए हम योगा में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। जय भारत, जय लद्दाख। Thank you so much, sir. Now I have the pleasure of inviting Dr. Padma Gurmit, Director of the National Institute of Savarikpa, to share his words of wisdom with us. Sir, please. Tuxe duetun jumtanta sadam sobangan dutungal sumna sangya mangila peduri ayu wala chasalu. Honorable Executive Councillor, Advocate Taishigal Sanji, Most Venerable Bhikkhu Sangasena ji, distinguished guest on the dais, participants, students, good morning to all. First of all, I would like to thank Venerable Sangasena ji for organizing this countdown program in such a wonderful way. On behalf of Ministry of Ayush, because since Yoga Day is declared by Government of India, Venerable Bhikkhu Sangasena ji has been the most important leader for yoga and meditation in Ladakh. We are really thankful to him for leading this event. Actually, from Government of India, 100 days countdown is started from 13 March. And we have the National Institute of Savarikpa had also organized one small event on 25th March with regard to 100 days countdown. But we have conducted the event on a very short notice with this small gathering because this is ongoing process as per the protocol set by Ministry of Ayush. All these 100 days, one event is happening in different parts of India to motivate and to encourage people to participate on 21st June main event. Ladakh is seen as one of the most important place for yoga destination. I want to share with you, actually, Honorable Prime Minister himself was very keen to organize the national event in Leh from last 5 years. I remember in 2020,
Venerable Sangasena ji also met with Honorable Prime Minister and personally requested him to organize the main national yoga event with participation of Honorable Prime Minister in Leh Ladakh. He agreed and we have met all the arrangement. Actually, at that time, after his request, our concerns officer in Ministry of Ayush actually looked for what is the status of yoga in Ladakh. Then they only found that Mahabodhi there is only one content from Mahabodhi. Beside Mahabodhi, there was no content. So immediately we rushed that since Prime Minister desired that he want to hold the Yoga Day in Ladakh. So what we have done is immediately we have rushed 100 participants from Ladakh to Morarji Desai National Institute of Yoga for yoga protocol instructor training, and 100 of our young yoga professionals were prepared that time. And they're still working in different fields. It was one kind of asset for us that we have something to do with yoga. Otherwise, that time even Government of India Yoga Day protocol is slightly different because it is a set protocol that is fixed after a lot of deliberations by various yoga experts that it should be easily doable for each and every person, old person, young person, all the persons should be able to do the yoga protocol. So accordingly, they have designed the program. Now, last year, Mahabodhi has started another major setup that they are now conducting Yoga Day event, Yoga Day protocol instructor training in collaboration with Morarji Desai National Institute of Yoga, which is the leading yoga institute of Government of India. And their main job is to promote yoga. Rightly, I remember when Bhikkhu Sangasena ji has got the third yoga award. Actually, it is international yoga award. It is not only given to Indian national, it is also given to foreign nationals also. So this is international yoga award. And getting the third yoga award for Ladakh is a big achievement and pride moment for us. So we really appreciate and thankful for your initiative and hope that you will continuously work for yoga, meditation, and spirituality. Earlier, Mahabodhi's main activity was for meditation only, but gradually now they are slightly developing as a yoga center on national level. At the same time, several times I've discussed with Guruji, he wants to develop Mahabodhi is international destination for yoga. So for that, effort of all of us is required. So since Honorable sees is here, he will certainly give full cooperation. It's a unique concept to develop Ladakh as a yoga, meditation, and spiritual destination. And this is the right place. Actually, now many tourist foreigners are coming to Rishikesh, Haridwar, and all these places for yoga only. If we manage to develop yoga, meditation, and spirituality, and give this package to international people, it will sell like a hot cake. Guruji has rightly mentioned potentials of yoga, meditation, and spirituality in Ladakh. And it is connected with our culture, actually. That's the beauty of Ladakh. It is closely associated with our culture. So we are hoping this time, since I've already told you that we have been trying to bring Honorable Prime Minister
here in Ladakh. This year again, we have pitched that it should happen in Ladakh. Actually, every year Yoga Day is happening all over country, but national event is selected by Prime Minister himself. Ministry of Ayush submits a panel of 3-4 destinations, and on his design he selects the one. Last year also Ladakh was on list. This year also I've requested ministry people to put it on list. If Honorable Prime Minister wished, then we can organize it here. I've also requested Honorable CZ to pursue with Ministry of Ayush and Prime Minister Office with request that the national event should happen in Ladakh, because it will give a big boost to set yoga, Ladakh as a yoga meditation destination. So without taking much time, once again, I would like to thank each and everyone for participating in this event on behalf of Ministry of Ayush, since National Institute of Swarikpa is the only institute in Ladakh from Ministry of Ayush. We are bound to celebrate this event in grand way. And Mahabodhi, this event is one of the benchmark that will be appreciated, I think, on national level, that this kind of countdown event is happened in Ladakh. So I would like to thank each and everyone. Thank you. Namo Buddhaya. Thank you so much, Dr. Padma Gurmitle. It is now my great privilege to invite our chief guest, Advocate Tashi Gyaltsen, Honorable Chairman and Chief Executive Councillor of LHTC Leh, to kindly deliver his message on this special occasion. Let us welcome him with a heartfelt appreciation. Kales sungshat sala sangan langit sik sum shin samara ngatang sangma thugyu janok. We all know Advocate Tashi Gyaltsen Sahib is one of our most dynamic, honest, sincere, totally committed to the development of Ladakh Juxtanokhale. Then Tashi Gyaltsen Sahib also have been a great admirer and supporter of our organization, Mahabodhi International Meditation Center, in its various multifarious spiritual projects. I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to Advocate Tashi Gyaltsen Sahib for his unwavering support towards the various activities of Mahabodhi. We know all today they have a very big important programs. Despite of his very tight schedule, he has been so kind to come and grace this important, the 100-day countdown yoga program here. Sir, we look forward for your guidance and support to make this Mahabodhi Meditation Center or the Buddha Park truly unique. It's already as unique, and it will be unique in the entire Himalaya. Once this project is completed, this will be the most important spiritual tourist attraction. We are here to promote spiritual tourism, cultural tourism, peace-loving tourism. You know, not the ordinary backpacker tourists go after worldly things. And this is already happening here. It's a beautiful concept, beautiful plan, and I look forward for his guidance. Thank you, sir. Thank you so much for your support and blessing us on this important occasion. Thank you. आज के मुख्य अतिथि वेनरेबल भिखु संघसेना जी, आता फिर गेंदुन समाजंग मेतकर जोमिरले मंच पे विराजमान सभी दिग्गज हस्तियां और यहाँ पे उपस्थित
विशेष अतिथिगण और हमारे महाबोधि स्कूल के छात्र, आप सबको सबसे पहले तो मैं जुले और गुड मॉर्निंग करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है ये जो 100 डेज जो रन अप टू महाकुंभ ऑफ योगा जो 21 जून को होने जा रहा है, उसके इस रन अप समोरा में आप सब को मैं वेलकम और स्वागत करना चाहता हूँ। योगा के बारे में विस्तार से जो है अभी हमारे गुरुजी ने बताया। उसके अलावा जो है हमारे जितने भी जो स्पीकर्स ने यहाँ पे जो आपने भाषण यहाँ पे किया, उसमें भी जो है इन्होंने जिक्र किया कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। और हम सब भी जानते हैं योगा कितना इम्पोर्टेंट है एक आम इंसान के हेल्दी हेल्थ के लिए, एक स्वस्थ हेल्थ के लिए जो है योग कितना ज़रूरी है। सिर्फ हेल्थ, ओवरऑल जो एक इंसान के जो वेलबींग के लिए, इवन इंक्लूडिंग आपके जो मानसिक संतुलन के लिए भी जो है योगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिस बिन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 5000 ईयर्स। और इतने सालों से योगा का प्रैक्टिस भारत में चलते आ रहा है। और इस योगा के एक खासियत को मद्देनज़र रखते हुए और योगा के जेन्युइन जो हेल्थ बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए और आज के इस दौर के जो ज़रूरतमंद जो है, स्पेशली जिसका जिक्र अभी गुरुजी ने कहा कि पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्टर्ब, और ऐसे में जो है एक कंपैशनेट हार्टेड, स्वस्थ जिसका एक माइंड हो, बॉडी हो, उसकी एक्शन उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे चीज़ों में जो है योगा का इम्पोर्टेंस को जो है दुनिया में जो है लोगों ने महसूस किया है। और उसी को चलते हुए जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है योगा को एडॉप्ट किया है। और योगा पिछले 10 सालों से जो है यूनाइटेड नेशन पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड योगा को सेलिब्रेट कर रहा है। और इस बार जो है 10वीं सालगिरह योगा का होने जा रहा है, जिसको जो है भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि ये योगा इस बार जो है महाकुंभ होगा पूरे योगा का। और पूरे देश भर और विश्व में जो है योगा बहुत बड़े स्तर पे जो है मनाने जा रहा है। लोग योग करेंगे, लोग योगा का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस 10 साल में तो यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोगों ने महसूस किया कि योग का एक्चुअली बेनिफिट है। और हम लोग शायद ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन बेटर देन नेवर, लेकिन आज लोग कर रहे हैं और हर कोई कर रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, कमिंग टुगेदर एंड डूइंग योगा फॉर अ डे। ये एक हम लोगों को एक आदत डाल देना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और सब इतने बिजी होते हैं, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट का समय सबको निकाल के जो है योग करना चाहिए सुबह। और योग का फ़ायदा कैसे मिलता है, हम सब के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमारे फेमस पुंचोक लद्दाखी जी को ही देख लीजिए, 30-35 साल से उम्र उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं उनका, योग करते हैं, है ना जी। हमारे गुरु जी खुद ही है यहाँ पे। तो इसी तरह जो है अभी लद्दाख में हमारा योगा का एक जीता जागता एक एम्बेसडर तो हमारे लद्दाख के एलजी भी है। ही इज 87 ईयर ओल्ड। मगर कहीं लगता है क्या 87 ईयर ओल्ड? नहीं लगता है, क्योंकि डेली योगा करते हैं। तो योगा का बेनिफिट जेन्युइनली जो है लोगों को मिलता है, तो योग करना चाहिए। और ये एक आपकी एक आदत में डाल देना चाहिए कि एवरीडे आपको योगा करना है। मैं गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी सालों से वो भी चिंतित है लद्दाख के लोगों के हेल्थ को देख के, लद्दाख के लोगों के जो इस 21st सेंचुरी में जो है सब मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हैं।
तो वहाँ पे जो है गुरुजी भी जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहते थे लद्दाख के लोगों के लिए कि भी वो भी थोड़ा सा काम रहे। पहले तो हम लोग बाय नेचर ही बहुत काम और कंपेशनेट होते थे, लेकिन विद टाइम पीपल चेंज, लेकिन समय पे उनको रियलाइजेशन भी कराना पड़ता है कि भाई आप ज़्यादा दौड़ रहे हो। तो उसका एक प्रयास जो है गुरुजी काफ़ी सालों से कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा दौड़ रहे हो, आप थोड़ा सा काम करो, है ना जी। तो उसके लिए भी जो है गुरुजी ने बहुत सहयोग किया है। हर टाइम जो है हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, योगा के माध्यम से और भी मेडिटेशन के माध्यम से। महाबोधि जो है मेडिटेशन, जो लद्दाख का जो महाबोधि का मेडिटेशन सेंटर है, इट्स नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे दूर से जो है यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। और मेडिटेशन लद्दाख में करने का फ़ायदा है, जैसे इन्होंने पहले ही कहा कि लद्दाख में आना ही इटसेल्फ इज़ you are giving some kind of you are getting some divine feelings। एक स्पिरिचुअलिटी में आप पहले ही जो है यहाँ लैंड करते ही आ जाते हो। उसके बाद फिर मेडिटेशन करना, योगा करना से जो है आपके वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो इनर पीस के जो है वो प्रैक्टिसेस जो है दुगना करने में जो है आपको वो सहयोग मिलता है। तो गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। योगा को लेके भी जो जब भी कोई बड़ा इवेंट रहा है वो महाबोधि के इनिशिएटिव और उनके सपोर्ट से हुआ है। मैं गुरुजी के जो विजन है, जो ये कहते हैं कि लद्दाख एक योगा का एक आइकनिक डेस्टिनेशन बन सकता है, वी हैव अ पोटेंशियल, और इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं बन सकता है। और हम इसको एक वर्ल्ड क्लास योगा डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काउंसिल का पूरा सहयोग गुरुजी को रहेगा। मैं ये आपके सामने आज आप सबके सामने ये आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। 2020 में जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को जो है यहाँ योगा दिवस के लिए आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कोविड के महामारी के कारण जो है वो साल जो है हम योग दिवस नहीं कर पाए, और पीपल सेलिब्रेटेड बाय सिटिंग इन डूइंग योगा इन देयर होम्स, लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं कर पाए और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी उसके चलते हुए नहीं आ पाए। इस बार महाकुंभ है योगा का, और हम कोशिश कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि लद्दाख में लाए योगा दिवस के दिन, और हमने एक रिक्वेस्ट भी जो है उनको एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट हमने भेजा हुआ है। उनके प्रायर कमिटमेंट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी इस बार हमें ब्लेसिंग देने के लिए जो है 21 जून को लद्दाख पधारे। तो ये हम सबका एक उम्मीद है, और विल कंटिन्यू टू परस्यू इट। बाकी मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। महाबोधि के कंट्रीब्यूशन को मैं जेन्युइनली इंडोर्स करता हूँ, और गुरुजी ने जितने भी जो यहाँ के जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जो काम किया है, उसके जितने भी हम एप्रिसिएशन करें उतना मेरे ख्याल से कम होगा, और कोई कर नहीं सकता है। एंड ही इज़ अ वन मैन आर्मी, ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। जो इनके काम को अगर हम गिनते रहेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इनके काम गिनते गिनते हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इनका इतना बड़ा योगदान लद्दाख के लिए, स्पेशली फॉर द पुअर, फॉर द अंडर प्रिविलेज, और जो हमारे यहाँ पे जो ओल्ड एज लोगों के लिए जो काम गुरुजी ने किया है, और यहाँ के लद्दाख के और लोगों के हेल्थ के बारे में जो इन्होंने जो काम किया है, उनको जितना भी अप्रिसिएशन करे काम है। इनके इन काम को देखते हुए भी जो है हमने अपने काउंसिल के द्वारा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इन 5 सालों में जब से यूटी बना है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे लेवल पे हमने कोशिश किया है कि गुरुजी को थोड़ा सा सपोर्ट करके इनके बर्डन को हम थोड़ा सा कम करें। और इसी के चलते हाल ही में जिस ये बुद्धा पार्क पे आज जो हम योग कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है हमने इस बार थोड़ा सा बजट के कंस्ट्रेंट के कारण जो है जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया, लेकिन हमने यहाँ पे एक छोटा सा 1 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट हमने दिया है, जो टेंडर अभी हो चुका है, और जल्दी जो है उसका काम भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी जो है बहुत कुछ यहाँ पे करने के लिए है। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है लद्दाख के लोगों के लिए, और महाबोधि को स्ट्रेंथन करना ये हमारा जिम्मेवारी भी है, और हम इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे आने वाले दिनों में। इस तरह का मैं आश्वासन आज गुरुजी को देता हूँ। एक बार फिर से जो है आपको 76th डे टुवर्ड्स द रन ऑफ फॉर महाकुंभ योगा जो
होने वाला है, उसमें आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं एक बार आप सबको मैं जुले करना चाहता हूँ और एक बार फिर से जो है यही कहना चाहूँगा कि योग करते रहिए। जुले, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your very inspiring and encouraging message speech. मैं जब टाइम नहीं लूँगा, एक चीज़ कहना चाहता हूँ। भारत के क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं पहले एक लीडर था, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। He was the only leader in the country or parliament loved by both his own party, of course, but opposition party. He is the only one leader loved by everyone. तो हमारे लद्दाख में भी एक लीडर है, he is loved by his own party and दूसरे पार्टी सब भी। कभी कभी डिबेट तो होता होगा सर, पॉलिटिकल पार्टी में कुछ डिस्कस होगा, भारत की दिल की गहराई में आपको सब प्यार करते हैं, सब लाइक करते हैं, ये मुझे पता है। I hope I am wrong, sir. If I am wrong, correct. You're not even right. No, I am right. Thank you so much. Tujeche tene service ngata sanang support train shodet pim tene daksa mola rak ngata Buddha Park ko kirte na ngone tangne jikten gangpe piang ta unique chichuche si samba no kana khali normal tourist piamen tourist jongkan sama compassion lectures, meditation lectures, yoga lectures, spiritually kaot jikten ina zarura ke thal dangdiri tuspina sama passion laptuk hale passion laptuk compassion burjet. Today is the world of passion and fashion but forgotten compassion. So we need to bring compassion. Yes, today आज का दुनिया है रोगों का रोगी लोगों का दुनिया बन गया। हम योग करना चाहिए, भोगी रोगी और भोगी हम योगी को प्रमोट करना चाहिए। तो जैसे लिया गुरु Thank you very much, sir, for your inspiring words and for always being so supportive of all our initiatives. A special thanks and gratitude to you and the LHTC, sir. Now it is the time to experience the practice of yoga through the common yoga protocol led by the dedicated instructors of the MIMC Yoga Institute. I request everyone to please take a position on the mat, stay present and allow the breath to guide you. बीच वाला टेबल लाना है। Siła potrzeba. Tak, 45 minut karmırsın o. Tak, 45 minut karmırsın o.
श्वास बढ़ते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाए। श्वास बढ़ते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाए। श्वास बढ़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। राइट और लेफ्ट गर्दन मोड़ने का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। श्वास बढ़ते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाए। श्वास बढ़ते हुए वापस आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। श्वास बढ़ते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाए। श्वास बढ़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। अगला अभ्यास गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाए। श्वास बढ़ते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराए। श्वास बढ़ते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। आप श्वास बढ़ते हुए सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पीछे ले जाए, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। श्वास बढ़ते हुए इस अभ्यास को दोहराए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आए। अगला अभ्यास संत संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। श्वास बढ़ते हुए दोनों शोल्डर को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास ले शोल्डर को ऊपर उठाए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। कंधा चक्र का अभ्यास। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियां को अपनी कंधे पर रखिए। आप दोनों एल्बोज को ज्वाइन कीजिए और पीछे की तरफ घुमाएं। यह अभ्यास एक बार और करें। आप विपरीत दिशा में भी ये अभ्यास 2 बार कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों शोल्डर को नीचे करें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास काठी चालन क्रिया। अपने पैरों में शोल्डर की बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाए। हाथों को शोल्डर की सीधा में रखिए, सामने और उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को राइट की तरफ घुमाएं। श्वास बढ़ते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाएं। श्वास बढ़ते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को राइट की तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बढ़ते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट की तरफ घुमाएं। श्वास बढ़ते हुए मध्यम भाग में वापस आए और हाथों की भी वापस ले आए। अगला अभ्यास घुटने का चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें।
श्वास बढ़ते हुए अपने हाथों को शोल्डर की स्तर तक सामने ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। श्वास बढ़ते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। श्वास बढ़ते हुए पहले जैसे स्थिति में जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए और विश्राम कीजिए। अब हम योग आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो वे एड़ियां न उठाएं। पैरों में 2-3 इंच का बीच दूरियां बना रखें। श्वास बढ़ते हुए हाथों को सामने से शोल्डर के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़े और दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में फंसते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास बढ़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। एड़ी को उठाते हुए पंजे पर संतुलन बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियां को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए राइट पैर को मोड़े। दाहिने तलवे के बाएं पैर पे जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास बढ़ते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। ताड़ासन तंत्रिका मांसपेशियों का तालमेल में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैर को नीचे ले आए और इसी तरह हम लेफ्ट साइड में भी करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ लें। अपने दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। सांस बढ़ते हुए अपने हाथों को ऊपर कीजिए और अपने हथेलियों को मिलाएं। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। आप श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैर को नीचे लाएं और विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास बढ़ते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपने हथेलियों को पैर के पंजे के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पंच शक्ति को सुधारता है। अब श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों एल्बो को समान अंतर में रखिए। श्वास बढ़ते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ये श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास बढ़ते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसे स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आए। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ घुमाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे
और मध्यम उंगली को दिखाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। अब सांस भरते हुए वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए और बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ घुमाएं। लेफ्ट पैर टर्न ऑन योर लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ झुकाते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को दिखाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। धीरे से सांस भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस ले आए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को अपनी हिप्स के पास रखिए और कमर सीधा कर लीजिए। इसे दंडासन स्थिति कहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। सांस छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपने एड़ियों को शरीर की तरफ ले आए और सीधा बैठ जाए। यह आसन घुटनों और नितंब को, जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे से दंडासन में वापस आइए। अपने पैरों को सीधा कीजिए। वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए। हाथों को कमर पर रखिए। सांस लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन स्थिति में आ जाए और विश्राम कीजिए। वज्रासन, सिट ऑन योर हील। शशंकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना अपने हिप्स उठाए शरीर को आगे ले आए। अपने चेस्ट और चिन जमीन से लगाए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मुड़ाएं। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पीठ एवं गर्दन दर्द को तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए। आप
घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में आए। वक्रासन, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाएं तरफ मोड़िए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। श्वास बढ़ते हुए वापस आ जाए। यह आसन बाएं तरफ से भी दोहराएं। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास बढ़ते हुए वापस आइए और विश्राम कीजिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। प्रोन पोस्चर में आ जाइए। पेट के बल लेट जाएं। मकरा आसन, अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरियां बनाएं। दोनों एल्बो को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली के पर रखिए। आप अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और आराम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। श्वास बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों के सीने के पास रखिए। श्वास बढ़ते हुए अपनी चिन और छाती को नाभि नेवल की भाग तक उठाएं। अपने दोनों एल्बो को समान अंतर में रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। ये आसन श्वासन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है, कफ से राहत दिलाता है। आप सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। मकरा आसन में विश्राम कीजिए। शलाभ आसन, अपने पैरों को मिलाएं। अपने हाथों को थाई के पास ले आए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। चिन को जमीन से लगाएं। श्वास बढ़ते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आए। मकरा आसन में विश्राम कीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सुपाइन पोस्चर में आ जाइए। सितुबन आसन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी से करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने एड़ियों के नितंब के नजदीक ले आए। अपने एंकल को पकड़ लीजिए। अब सांस लेते हुए हिप्स और कमर को ऊपर उठाएं और ब्रिज पोज बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए।
पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पाद हस्तासन। पैरों को मिलाए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 35 डिग्री का कोण बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर को जमीन पर लाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को मिलाए, हाथों को थाई के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार ना पाए वो हाथों का सहारा ले। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। ये आसन हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पावन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाए और घुटनों को मोड़ते हुए अपने थाई से सीने के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए लेग को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी चिन या नोज को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन डाइजेस्टिव फंक्शन को मजबूत बनाने में सहायक प्रदान करते हैं। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आए और विश्राम कीजिए। अब हम शाब आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाए, हथेलियों को आसमान की ओर खुलाए, आंखें बंद कीजिए। गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाए। ये आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से राइट या लेफ्ट और करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए। Sit in any meditative posture. अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। किसी भी ध्यानमग्न आसन में बैठ जाए। आंखों को बंद कीजिए। कमर और गर्दन सीधा रखिए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाए और अपने घुटने के ऊपर रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू कीजिए। श्वास अंदर लीजिए, अब गहरा लंबा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए।
कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। इनहेल, एक्सहेल फोर्सफुली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब गहरा लंबा सांस छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों की क्रिया को सुधारने में सहायक है, कफ विकारों को दूर करता है। लंबा सांस लीजिए और विश्राम कीजिए। अगले अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन। कमर और गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद रखिए, अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अपनी लेफ्ट नी के ऊपर रखिए। राइट हैंड को नासिका मुद्रा बनाए, अपने पॉइंटर फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कीजिए और धीरे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और धीरे धीरे से अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। अपने बाएं नोस्ट्रिल को बंद कीजिए रिंग फिंगर के साथ और राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़िए और अगेन सेम नोस्ट्रिल से इनहेल कर लीजिए और बाएं नासिकाग्र से सांस को छोड़िए। यह है 1 राउंड। हमें इसे और 3 बार करना है। इनहेल विथ योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale right nostril, again inhale the same nostril and exhale left nostril. Second round, the last round. Inhale, exhale, again inhale and exhale. रिलैक्स कीजिए। ध्यान रहे आपका विष धीमा, गहरा और लाभदायक हो। अगले अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियां से ज्ञान मुद्रा बनाए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से गहरा सांस लीजिए। आप इसी अभ्यास को शंख मुखी मुद्रा के साथ 2 बार कीजिए। अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर रखिए, अपनी थाम से अपनी कान को हल्का सा दबाए, पॉइंटेड फिंगर को अपनी एल्बोज के ऊपर आईब्रोज के ऊपर रखिए, मिडिल फिंगर को आई के ऊपर, रिंग फिंगर को नोज के सामने और लिटिल फिंगर अपनी चीन के ऊपर रखिए और सांस अंदर लीजिए। पूर्ण श्वास लीजिए। अब अपने हाथों को वापस ले आए। ये प्राणायाम तनाव दूर करने में सहायक है। हम मेरुदंड को सीधा कीजिए और ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
धीमा और गहरा सांस लीजिए, धीमा और गहरा सांस छोड़िए। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रतीक सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। ये मन को शांत रखता है और आत्मा हमें अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रतीक, कुटुंबों के प्रतीक, क्रिया, समाज और विश्व के प्रतीक, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। और इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप हथेलियों को आंखों पर रखिए और आंखें खोलिए, हाथों को वापस ले आए। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you all. I hope everyone had a good yoga session. Moving forward,